Okay, very good morning to all. Myself, Professor Utkarsh Solanki from the Pacific School of Engineering, Electrical Engineering Department. And today we are going to perform the practical on the KVL and the KCL, Kirchhoff's current law and the Kirchhoff voltage law. Okay, so this is the kit of the KVL and the KCL. And here we are giving the supply of the 3 volts. See, we can see here the 3 volt. 0 to 3 volt DC supply. Okay, so we are going to perform this practical on the DC supply. Now, by adjusting the set voltages, we can vary the voltages. So here I had seen this circuit over here. So 0 to 3 volt and the adjustable. So I had shown in as a notified as a adjustable voltage source. Okay, so it is a DC voltage source. Now, then after circuit looks like a 0 to 3 volt DC volt. Then after I will measure the voltages regarding the, because it is adjustable. So 0 to 3 volt का एक DC voltage source लगा देंगे. Then after we are going to connect in series after the DC source. We are going to connect the series in a 5 ohm. So here in a circuit we can see here the circuit goes like here and here. See, it is here 5 volt. We can see a 5 volt here. Then after directly connection with the ammeter. See, now we can see the connection of a ammeter here. The wire goes from the 5 ohm to directly to the ammeter. So this is the ammeter. तो ammeter की वैल्यू क्या है? तो that is a 250 मिली एम्पियर. 250 मिली एम्पियर. मिली मीन्स के 3 रेज टू माइनस 10 रेज टू माइनस 3. ओके, और वोल्टेज की कितनी है? तो दिस इज अ वोल्ट मीटर. सो वी हैव द 3 वोल्ट डीसी सप्लाई भी है और मेजर करने के लिए वोल्ट मीटर भी है. ओके, देन आफ्टर वी कैन सी ऑन अ सर्किट आफ्टर द ए मीटर इट गोज टू द 33 ओम. सो आफ्टर द ए मीटर, सी फ्रॉम द हियर टू हियर, एंड नाउ द सर्किट गोज फ्रॉम हियर टू हियर. तो उसका R4 पे कितना वोल्टेज कितना रेजिस्टेंस है? इट इज़ अ 33 ओम. तो एज पर आवर सर्किट इट इज़ सेटिस्फाइड. ओके, तो आफ्टर द ए मीटर नेगेटिव प्लस माइनस. ओके, नेगेटिव इट गोज टू द 33 ओम. नाउ 33 ओम पे चला गया. नाउ दैट 33 ओम इज कनेक्टेड. नाउ दैट 33 ओम इज कनेक्टेड विद द ग्राउंड लेवल. सो यहाँ से सीधा ग्राउंड, मतलब कि माइनस पे पॉइंट है. माइनस का पॉइंट आप देख सकते हो, ये वाला माइनस का पॉइंट है. देखो, आप देख सकते हो इधर पे माइनस का पॉइंट है. ओके, चलो. सो KVL and the KCL. So what does the KVL says? That it states that the algebraic sum of the product of the current and the resistor. करंट मतलब कि I and the resistor मतलब कि V. resistor मतलब कि R. तो V is equal to IR. So in each of the conductor in any closed path in a network plus the algebraic sum of the EMF of closed path is equal to 0. तो मतलब कि उसका जो क्लोज पार्ट algebraic sum of IR plus algebraic sum of EMF is equal to 0. It should be 0. ओके, तो ये हमारा KVL है. Now what the KCL says? KCL says that the algebraic sum of the current entering any loop or any node in equal to the 0. So if I say कि यहाँ से सपोज के 3 एम्पियर उसने लिया है, तो यहाँ पे कितना आना चाहिए? -3 एम्पियर. मतलब कि जितना जाएगा वो उतना यूज़ करके वो फिर से आएगा. ओके, सो algebraic sum of the current entering in any node is equal to the 0 is called the Kirchhoff's current law, KCL. तो हम जो परफॉर्म करने वाले था प्रैक्टिकल है, तो वी हैव टू राइट द एपरेटस. तो एपरेटस में हमारे पास क्या क्या है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव द रजिस्टर. ओके, तो रजिस्टर कितना है? तो 5 ओम रजिस्टर है और 33 ओम रजिस्टर हमने कनेक्ट किया है, वो भी सीरीज़ में कनेक्ट किया है. देन आफ्टर, तो 5 ओम से पहले क्या था? तो वी हैड कनेक्टेड ए वोल्ट मीटर अक्रॉस दी सोर्सेज. ओके, वोल्टेज सोर्सेज. तो वोल्टेज सोर्सेज हमारा ये रहा. तो 3 ओम का वोल्टेज सोर्सेज हो, आप देख सकते हो इधर पे 0 to 3 ओम वोल्टेज सोर्सेज.
तो यहाँ का जो कनेक्शन है तो सीधा मैंने पैरेलली, ये दो कनेक्शन पैरेलली मैंने सीधा डाल दिया इसके अंदर, मतलब कि इस तरह इसका सप्लाई सीधा मैंने इधर पे डाल दिया, तो इसका सप्लाई मैंने इधर पे सीधा पैरेलली कनेक्ट कर दिया। देन आफ्टर तो जो पैरेलली कनेक्टेड है आप देख सकते हो सर्किट में, तो पैरेलली कनेक्टेड तो वो सीधा किधर पे जा रहा है, तो 5 ओम पे। तो यहाँ से मैं एज ए इनपुट डालना पड़ेगा ना मुझे। ये तो हमारा वोल्टेज मेजर करेगा, किसका वोल्टेज, तो एडजस्टेबल डीसी वोल्टेज का। तो हम इधर से वेरिएबल वोल्टेज है तो उसको हम एडजस्ट करेंगे, और उसका करंट और कितना रेजिस्टर तो फिक्स ही है, तो हम उसका करंट मेजर करेंगे। तो ये रहा उसका जो 2 इनपुट है, तो उसका नोडल है, तो उसमें से मैंने इधर पे इनपुट में डाल दिया। तो वी हैड गॉट दी टू इनपुट प्लस एंड माइनस। ओके, नाउ वो सीधा कनेक्टेड ही है, देखो आप देख सकते हो इधर पे कनेक्टेड है। तो 5 ओम आ गया, दैट मीन्स कि यहाँ से हमारा 5 ओम आ गया। अवे नाउ आफ्टर दी 5 ओम, तो यहाँ से पॉइंट मैंने डाल दिया किधर पे, तो यहाँ पे, दैट मीन्स के ए मीटर पे आ गया ये चीज़। कनेक्शन थोड़ा वीक है। ओके, देन आफ्टर इट गोज़ टू दी, कहाँ पे गए ये ब्लू वायर, देखो आप यहाँ पे गया। ओके, यहाँ से अब आप देख सकते हो कि यहाँ से मैंने डाला किधर पे, तो 33 ओम पे, मतलब कि 5 ओम का मैंने सीरीज कनेक्शन डाल दिया ए मीटर बीच में। अब ए मीटर से सीधा 33 ओम रजिस्टर पे चला गया, तो रजिस्टर 33 ओम पे आ गया इधर पे। देन आफ्टर उसका जो दूसरा पार्ट है तो वो चला गया इधर पे, यहाँ से। तो ये कौन सी लाइन है, तो वी कैन सी इट इज़ अ नेगेटिव लाइन। तो आप देख सकते हो यहाँ से नेगेटिव लाइन। और सपोज़ कि मैं अगर मेज़र करना चाहता हूँ तो मैं इधर पे I2 लगा सकता हूँ, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि पूरा सर्किट जो है वो सीरीज़ में कनेक्शन, तो करंट तो एक ही फ्लो होगा। ओके, लेकिन एडजस्टेबल वोल्टेज है तो वेरी क्या करेगा, वोल्टेज वेरी करेगा। तो हमें वोल्टेज वेरी करके उसका कितना एम्पियर है वो हमें निकालना पड़ेगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल we have the apparatus like a DC adjustable voltage. Okay, then after DC voltmeter, A मीटर वो कितना वैल्यू तक का है, तो 250 मिली एम्पियर आप इधर पे देख सकते हो। देन आफ्टर वोल्टमीटर कितना, तो 0 to 3 वोल्ट DC सप्लाई है। देन आफ्टर वी हैव टेकन दी 2 रजिस्टर, 1 रजिस्टर ऑफ द 5 ओम विच इज़ डायरेक्टली कनेक्टेड इन सीरीज विद दी 33 ओम, और 33 ओम से हमने सीधा ले लिया इधर पे। ओके, तो ये हमारी बन चुकी है KVL KCL की किट। Now we are going to perform the practical on the KVL KCL kit. Okay, so first of all मैं क्या करूँगा, एडजस्टेबल वोल्टेज से मैं फर्स्ट में 1 ओम उसको डालूँगा। चलो आप देखिए, देखो 0.1 मतलब कि अभी तक 0 नहीं हुआ। ओके, चलो तो मैं यहाँ पे 1 ओम डालता हूँ। आई एम इंक्रीजिंग द वोल्टेजेस। देखो यहाँ से मैं एडजस्टेबल वोल्टेज है, आप देख नहीं पा रहे हो, लेकिन आप इधर से मूव ऑन कर सकते हो, आप देख सकते हो। तो मैंने कितना किया, तो जिस तरह से मैं वोल्टेज को चेंज करो तो एम्पियर भी चेंज हो रहा है। तो मैंने पहले डाला 1 ओम, चलो 1 ओम। ओके, एट द वैल्यू ऑफ द 1 ओम वी आर गेटिंग द 22 एम्पियर। एट द वैल्यू ऑफ द 1 ओम वी आर गेटिंग द 22 एम्पियर। देखो ये दोनों सेम ही एक ही है। ओके, R इज इक्वल टू V बाई, तो 20 कितने हैं, 1/22। ओके ना, 1 क्या है, वोल्टेज है, और 22 क्या है, दैट इज द एम्पियर। नाउ द सेकंड वैल्यू, नाउ वी आर गोइंग टू इंक्रीज द वोल्टेजेस फ्रॉम 1 वोल्ट टू 1.5 वोल्ट। तो 1.5 पे में हम इंक्रीज करेंगे। ओके, चलो, अरे चेंज हो गया। 1.5 पे मुझे कितना मिल रहा है, 32 या 33। 1.5 पे 33। चलो, देन आफ्टर वी आर गोइंग टू इंक्रीज द वोल्टेज वंस मोर इन अप टू द 2 वोल्ट। सो हियर वी गॉट द 2 वोल्ट and the ampere is 51. That means कि approximately it is near to the 50 because it is a 2.05. Okay, now the third value is at 2 volt and the ampere is at 50 ampere. Okay, so 50 तो नहीं रहेगा, लेकिन it is a 50 milliampere. Okay, it is not an ampere, it is a milliampere. Now again we are going to increase the value from the 2 volt to
2.5 वोल्ट। ओके, थोड़ा सा बढ़ूँगा। सो वी आर गेटिंग दी अप्रोक्सीमेटली 2.5 तो 60 एम्पियर। 2.5 पे मुझे कितना मिलेगा? 2.5 वोल्ट पे 60 एम्पियर मिलेगा, तो 60 एम्पियर। चलो ओके, तो 4 वाला भी रीडिंग होगा। नाउ द लास्ट रीडिंग वी आर गोइंग टू टेक, दैट इज ऑन 3 वोल्ट। सॉरी ज़्यादा बढ़ गया। ओके, 3 वोल्ट पे कितना मिल रहा है? अप्रोक्सीमेटली नियर टू दी अप्रोक्सीमेटली नियर टू दी 72। 3 वोल्ट पे हमें मिल रहा है अप्रोक्सीमेटली 72, मतलब कि 70 ही आसपास मुझे मिल रहा है, 70। ओके, तो ये सब मेरा मिली एम्पियर में है, ये सब मेरा मिली एम्पियर में होगा। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यूज़ ऑफ द एम्पियर। तो हम एम्पियर कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो देखो, मैं पहले एक ही आपको दिखा देता हूँ। 1 वोल्ट, R इज इक्वल टू V बाई R, R इज इक्वल टू V बाई R इज इक्वल टू V बाई I। वोल्टेज कितना लिया था? 1 वोल्ट लिया था, 1 वोल्ट। और मेरा एम्पियर कितना आया था? मेरा एम्पियर आया था 22। चलो ओके, 22। तो जो आंसर आएगा सो वो तुम्हारा रेजिस्टेंस होगा। ओके, तो आप उसी तरह से आप ढूंढ लोगे कि कितना वैल्यू था मुझे मिलेगा, बराबर। तो उसी तरह से आपको कैलकुलेट भी करना है। सपोज़ कि आपको ये कैलकुलेट नहीं करना था, उसके अलावा जो अगर दूसरा कोई कैलकुलेट करना, तो आपको किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हो कि आपके पास फिक्स रजिस्टर है 5 ओम एंड 33 ओम। 5 ओम मतलब कि रजिस्टर आपके पास फिक्स है, 5 ओम मतलब कि R1 प्लस R2 बोथ आर कनेक्टेड इन अ सीरीज, तो 5 प्लस 33, तो वी हैड गेट दी 38। ओके, 38 ओम फिक्स है। ओके, चलो हमने वोल्टेज को वेरी किया है, देन आफ्टर वी आर वेरी दी वोल्टेज। ओके, वोल्टेज को हमने वेरी किया, उसके हिसाब से मुझे करंट भी वेरिएशन में मुझे मिलेगा। देन आफ्टर वी हैव टू प्लॉट दी ग्राफ। ओके, देन आफ्टर वी हैव टू प्लॉट दी ग्राफ बिटवीन दी V एंड I, बिटवीन दी V एंड I। उसी तरह से आप पॉइंट रखते जाओ। तो हमारे पॉइंट पहले वोल्टेज पे कितना मिला मुझे? तो 1 वोल्ट, 1 वोल्ट, 1.5 वोल्ट, 2 वोल्ट, 2.5 वोल्ट, 3 वोल्ट, 3.5 वोल्ट। ओके, देन आफ्टर द एम्पियर्स राइज फ्रॉम दी 20, 30, दैट मीन्स कि हम लोग उसे 10, 20, 30, 40 एंड 50 एंड अप्रोक्सीमेटली 60 एंड 70। ओके, यहाँ से गया हम लोग। देन आफ्टर हमने 1 वोल्ट पे कितना एम्पियर मुझे मिला? 22। दैट मीन्स के 1 वोल्ट पे मुझे मिला 22 अप्रोक्सीमेटली। ओके, देन आफ्टर आई हैड गॉट दी 1.5 पे कितना मुझे? 33। 1.5 पे मुझे 33 मिला। ओके, चलो वेरी गुड। देन आफ्टर 2 पे मुझे मिला 50। 2 पे मुझे मिला 50। ओके, तो मेरा जो लाइन होगा ना, तो इट शुड बी लीनियर, इट शुड बी लीनियर। आप देख सकते हो इधर पे। तो हमने स्केल क्या लगाया है? तो एक्स एक्सिस पे, एक्स एक्सिस जो हमारा एक्स है, सो इट इज़ अ वोल्टेज, वोल्ट, और 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू, हमें इधर पे 0.5 लगाना पड़ेगा, 0.5, 0.5 वोल्ट। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 0.5 वोल्ट। आप इधर पे देख लीजिए, तो वाई एक्सिस पे क्या खड़ा है? तो वाई एक्सिस पे है, दैट इज़ अ एम्पियर। तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू कितना है? 10, 20, 30, दैट मीन्स के 10 का गैप है, तो 10 मिली एम्पियर में है। ओके, आप ये थोड़ा समझ के लिखना है। मिली एम्पियर, एम्पियर मिली एम्पियर में फ़र्क होता है। मिली एम्पियर मीन्स के 10⁻⁻3। ओके, तो 0.01 होगा ये।
का एम्पियर। चलो, तो उसी तरह से आपको ये प्रैक्टिकल परफॉर्म करना है। सो ऑन अ नेक्स्ट लेक्चर वी विल परफॉर्म दी अनदर प्रैक्टिकल। ओके।